हमें अपने ग्राउंड सेगमेंट के ऊपर आरएफ लिंक विजिबल था, हमें उसके तमाम सिग्नल जो है वो यहाँ पे मिल रहे थे। उसको कंट्रोल करने की जो कमांड्स थी वो कमांड जो है वो यहाँ से अपलोड की जा रही थी, और एवरीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड वाज बीइंग डन एट दैट टाइम। और तमाम मराहल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी के साथ इस सैटेलाइट के पूरे किए। तो इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि दिस वाज नॉट ओनली वन सैटेलाइट, इस सैटेलाइट के साथ साथ हमने इस सैटेलाइट को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया, इस सैटेलाइट को टेस्ट करने के लिए जिन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट थी उनको बिल्ड किया, इसके लिए जो मैन पावर को हमने ट्रेन करना था उसको ट्रेन किया, इसके प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन प्रोसीजर्स को इसके अंदर डेवलप किया, एग्जीक्यूट किया। तो ओवरऑल हमारा जो टेक्निकल थ्रेशोल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सक्सेस के साथ जो है वो अब हमारे ये तमाम पैरामीटर्स जो है वो पूरे हुए, और मैं इसकी मुबारकबाद जो है वो तमाम उस टीम को जिसने इसके ऊपर काम किया, उस लीडरशिप को जिन्होंने थ्रू आउट इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका साथ दिया, और अगेन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. As Dr. Yasser mentioned, EO1 is an application satellite which will significantly enhance our ability to make informed decisions for the socio-economic uplift of our country. On this note, I would like to share a video message from the Director General Geo Satellite Center, Mr. Irfan Aslam. I'd request IT to kindly play the video. This remarkable achievement highlights our nation's growing capabilities in space technology and our commitment to self-reliance. EO1 will play a critical role in providing valuable data for environmental monitoring, disaster management, natural resource management, urban development, and agricultural planning. This milestone marks an important step in our space program, showcasing the hard work, innovation, and determination of our scientists and ख़वातीनो हज़रात, अब मैं तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी सुपारको जनाब ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद ख़ान लुघमानी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। The honorable dignitaries, esteemed colleagues, members of the media, and distinguished, its completion has significantly boosted our confidence, reinforcing our expertise in developing cutting-edge space technologies, and inshallah, its successful operation in orbit around the globe will be another source of encouragement and motivation. In fact, this event marks a significant milestone, not only for Sparco, but for the entire nation, as we continue to advance in space technology and innovation. Ladies and gentlemen, as the EO satellite is designed and developed entirely by Sparco, I must congratulate the EO1 project team stationed at Islamabad, Karachi, and Lahore, who have contributed to the project in different capacities. We all have worked day and night throughout the various stages of the mission, from design and development to integration, and the most significant phase of testing, which finally qualifies a satellite for launch into space. This unwavering dedication, ingenuity, and collective hard work are the hallmark of mission success. Ladies and gentlemen, EO1 satellite will enhance our ability to monitor and manage natural resources, predict and respond to natural disaster, and support various sectors including agriculture, urban development, and environmental monitoring.
It is an asset that has strengthened our space-based infrastructure, and it will support our national and regional initiative with actionable insight derived from the space. The in-orbit development and the deployment of EO1 today is a highlight of Pakistan's focus on leveraging space technology for societal and economic progress, paving the way for further indigenously developed satellite in the near future, inshallah. Today, Sparco have an operational fleet of diverse satellites, each contributing uniquely to Pakistan's space capabilities. For instance, the ParkSat MM1 communication satellite launched last year in May 2024 is pivotal in enhancing connectivity and internet services across country and serving as a stepping stone in the transformation to a digital Pakistan. Ladies and gentlemen, launch of EO1 satellite from the Yu Shuan Satellite Launch Center stands as a testimony to robust and enduring partnership between Pakistan and China. Our collaboration in space technology has been instrumental in achieving this milestone, reflecting the strength of international cooperation in advancing scientific and the technological progress. As we revel in this achievement, let us also look towards the future with renewed vigor and ambition. The journey of space exploration is boundless, offering infinite possibilities for discovery and innovation. Let us continue to push the boundaries, embrace challenges, and strive for excellence in all our endeavors. With sustained efforts and struggle, we can achieve remarkable feats that contribute to the prosperity and advancement of Pakistan and the global community. May Allah help us and guide us and bless our nation with all the more prosperity. Ameen. Sparco Paindabad, Pakistan Zindabad. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. ख़वातीनो हज़रात, सैटेलाइट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक बहुत पेचीदा अमल है जो हर मरहले पर महारत और दुरुस्तगी का तकाजा करता है। इसका आगाज़ इब्तदाई डिज़ाइन से होता है और उसमें मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की जांच और इंज़माम शामिल है। हर जुज़ को खला के सख्त हालात के मुताबिक जांचा जाता है। हतमी मरहला फ़्लाइट मॉडल की तैयारी है जिसे लॉन्च से पहले सख्त टेस्ट से गुजारा जाता है। Process begins with the conceptual design and involves rigorous testing and integration of various subsystems. Each component undergoes environmental testing to simulate the harsh environment of space. This final phase is the creation of flight model, which is then tested extensively before the launch. This painstaking process reflects the dedication of Suparco's engineers who have proven their ability to overcome many challenges and deliver a world-class product in the space sector. ख़वातीनो हज़रात, EO1 सैटेलाइट एक तकनीकी कामयाबी के साथ साथ हमारी क़यादत, हमारे साइंसदान और हमारे इंजीनियर्स की मेहनत, महारत और अज़म की रोशन मिसाल है। ये सैटेलाइट पाकिस्तान की माशरती, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इंतहाई मुआवन साबित होगा और मुख्तलिफ शोबाजात में अहम किरदार अदा करेगा। मसलन कुदरती वसाइल की निगरानी और पायदार तरक्की, शहरी मनसूबाबंदी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, कुदरती आफात से निमटने के लिए बेहतर हिकमत अमली, ज़राअत की बेहतरी और खुराक की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। The EO1 satellite has been designed to capture optical images which will be used for applications such as monitoring natural resources for sustainable management, urban planning to ensure infrastructure development, disaster management to save lives and mitigate damages, agriculture monitoring to improve yields and combat food insecurity in Pakistan. Ladies and gentlemen, and now in a few moments we will be showing visuals from Jiuquan Satellite Launch Center in China,
the launch sequence of EO1 satellite earlier this morning. ख़वातीनो हज़रात, अब से कुछ देर बाद आप अपनी स्क्रीन पर लॉन्च के मनाजिर देख सकेंगे। EO1 सैटेलाइट की लॉन्च, जो कि चीन के जियोचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च की गई। ख़वातीनो हज़रात, ये सैटेलाइट हमारी सैटेलाइट के बेड़े में 5वीं सैटेलाइट के तौर पे इजाफ़ा करेगी। हमारी सैटेलाइट्स, जिसका सफ़र 1990 में मकामी तौर पर तैयार करदा बद्र अव्वल से किया गया, जिसके बाद 2001 में बद्र बी लॉन्च किया गया। 2011 में पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट 1R लॉन्च की, जिसका मकसद मुल्क में टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड खदमात को फ़राहम करना था। सन 2018 में पाकिस्तान की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और मकामी तौर पर तैयार करदा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट 1A भी लॉन्च की गई। सैटेलाइट्स PRSS-1 और पाक टेस्ट 1A ने ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियत में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया, ख़ास तौर पर कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफ़ात से बचाव में इंतहाई मुफीद साबित हुई। 2024 में लॉन्च करदा जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, नशरियात और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आप EO1 सैटेलाइट के प्री लॉन्च डिज़ाइन और डेवलपमेंट के फेजेस देख रहे हैं। 2024 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST और चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तैयार करदा iCube कमर चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी क्यूब सैटेलाइट था, जिसने इससे न सिर्फ खलाई टेक्नोलॉजी में तहकीक और तालीम पर पाकिस्तान की तवज्जो को ज़ाहिर किया, बल्कि चांद पर तहकीक में भी एक अहम संग मील साबित हुआ। EO1 हमारे खलाई अज़ाइम और तकनीकी खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ते इक़दाम की अक्कास है, और अब से कुछ देर बाद हम लॉन्च के मनाजिर स्क्रीन पर देख सकेंगे। Since its inception, Saparco is striving to harness space technology for the betterment of Pakistani people and national security. EO1 is now the fifth satellite in our fleet. Our journey began with the launch of Badr 1 in 1990, followed by Badr B, launched in 2001. In the year 2011, our first communication satellite, Parksat 1R, accommodated the orbit, which fulfilled the national telecommunication requirements, and it is still operational. 2018 marked the year of our first remote sensing satellite, PRSS-1, and indigenously developed ParkTest 1A. Last year, in May, Parksat MM1, an advanced communication satellite, was launched, which plays a vital role in improving internet connectivity, broadband services, and digital infrastructure in Pakistan. Also, in 2024, Pakistan made history when the CubeSat iCube Qamar, developed by the Institute of Space Technology, reached the lunar orbit. With EO1, we have taken a step forward, ensuring technological self-reliance and advancement in space sector. These milestones highlight Pakistan's progressive space ambitions and its contributions to space science, technology, and its applications. ख़वातीनो हज़रात, EO1 सैटेलाइट के बारे में अगर हम कुछ और तफसीलन बात करें तो EO1 सैटेलाइट मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी इफ़ादियत के ज़रिए नहायत मुअव्वन साबित होगी, जैसे कि शोबा बराए ज़राअत में फ़सलों की निगरानी, आपाशी के इंतज़ाम और पैदावार की पेशगोई में खलाई मुशाहिदे, डाटा और मालूमात के ज़रिए मदद मुमकिन हो सकेगी। EO1 will provide precision farming insights, enabling crop monitoring, irrigation management, and yield prediction, thus contributing in the agriculture sector in Pakistan. शोबा बराए शहरी मनसूबा बंदी का जिक्र करें तो EO1 सैटेलाइट मुख्तलिफ तामीर व तरक्याती प्रोजेक्ट्स की निगरानी, पेशरफ्त को ट्रैक करने,
तजावुज़ात की रोकथाम और शहरी फैलाव की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी में भी मुअव्वन रहेगी। Our satellite will be instrumental in urban planning and management. It will assist in monitoring and tracking the infrastructure growth, the managing the urban sprawl for sustainable development in our country. शोबा बराए माहौलियाती निगरानी में EO1 सैटेलाइट के ज़रिए ग्लेशियर्स के पिघलने, जंगलात की कटाई और आबी वसाइल के बारे में अहम मालूमात अखज़ की जा सकेंगी। EO1 satellite is also crucial in environmental monitoring. It offers critical updates on glacier recession, forest monitoring and management, deforestation, and mapping, monitoring, and management of water resources. इसके अलावा शोबा बराए कुदरती आफात के इंतज़ाम में सैलाब, ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग जैसे कुदरती आफात के मौके पर EO1 सैटेलाइट खलाई डेटा के तहत बर वक्त मालूमात फराहम करेगा। As we know that Pakistan is prone to climate change and natural disasters like floods, landslides, and earthquakes. For disaster management and mitigation, the data received from EO1 satellite will help in devising early responses, effective rescue, and mitigation strategies in times of such crucial disasters. ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर बताते चलें कि इस वक्त EO1 लॉन्च के प्री लॉन्च के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के फेजेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे और अब से कुछ देर बाद हम लॉन्च के मनाज़िर आपके साथ शेयर करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त लॉन्च के मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। EO1 लॉन्च और ये इग्निशन के साथ लिफ्ट ऑफ हो चुका है। ये अज़म, ये हौसला, ये जुस्तजू हमारी फलक के साथ है। अब ज़मीन की पासदारी। मोहतरम मेहमान खुसूसी, दीगर मेहमानान गिरामी और तमाम मीडिया आउटलेट्स के नुमाइंदगान, आप सभी की शिरकत का बेहद शुक्रिया। सुपार्को की कामयाबी मुल्क व कौम के ताबनाक मुस्तकबिल और सरबुलंदी की ज़ामिन है। हम अहद गो हैं कि खला में रसाई के अहदाफ और खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में कामिल महारत के हुसूल के लिए जारी इस सफ़र में इसी मेहनत और लगन के साथ कोशां रहेंगे और मुल्क व कौम की कामयाबी से हमकिनार होते रहेंगे। Inshallah. Ladies and gentlemen, let us take pride in this remarkable achievement. The launch of EO1 satellite is not just a milestone for Suparco, but for each and every single Pakistani. It symbolizes hope, progress, and the limitless possibilities of innovation in this country. Together, we are paving the way for a brighter future of Pakistan. सुपार्को जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you all for your patience and attendance. शफात अली, डायरेक्टर स्पार्को। और ये जो आज हमारी पहली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल
सेटेलाइट लॉन्च हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा संग मील है इस लिहाज से कि ये हम पाकिस्तान की पहली इंडिजीनियस बनाई हुई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट है जो कि स्पेस में लॉन्च हुई है। और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है। इस सेटेलाइट में हमारी जो मेन एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिकली हम इस सेटेलाइट की मदद से ज़मीन की इमेजेस और पिक्चर्स लेते हैं। अब आप उन इमेजेस को जो हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एप्लीकेशंस में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, सिमिलरली अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गई, और साथ में आजकल जो एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का एक जो फैक्टर आया हुआ है दुनिया भर में, तो उसको स्टडी करके उसके लिहाज से आपको अपने कंट्री में क्या क्या मेजर्स लेने हैं, तो ये इन इमेजरीज़ की मदद से हम वो मेजर्स भी अडॉप्ट करके जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको बता के, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको बता सकते हैं। और साथ में ना सिर्फ वो इसमें होगी बल्कि फूड सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ जो जो एक अजनास है उसकी पैदावार और उसका सही इस्तेमाल कि कितना, तो इस सेटेलाइट की इमेजरीज की मदद से ना सिर्फ हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किन जगहों पे क्या क्या पैदावार करनी चाहिए है, किन किन चीज़ों की ज़राअत होनी चाहिए है, और ताकि वो चीज़ आपके फिर मुल्क में जो आपको ज़रूरत है जिन जिन चीज़ों की, उसके हिसाब से आप काश्तकारी करके उन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। तो ये मेरा नाम आयशा रबिया एहसन है और मैं स्पार्को में SGM काम करती हूँ। इसको बनाने के अंदर चैलेंजेस के देखें कि सैटेलाइट में स्पेस में जाता है, स्पेस का इन्वायरमेंट जो है वो ज़मीन के इन्वायरमेंट से डिफरेंट है, वहाँ पे टेम्परेचर्स डिफरेंट है, वहाँ पे सोलर जो उनसे हैं उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इस सारे की हिफाजत के लिए सैटेलाइट को जब भेजा जाता है तो इस तरह उसको कम्पैक्ट डिज़ाइन, उसके अलावा जो डिज़ाइन के अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक होता है कि आपकी फैसिलिटी जो उनसी है वो डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिहाज से कि सेटेलाइट का जो डिज़ाइन है उसके लिहाज से उसकी टेस्टिंग के मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं और उसकी डिज़ाइन के भी मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेवलपमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हमारे जैसे सर ने पहले भी बताया कि यहाँ से चाइना की ट्रांसपोर्टेशन भी एक अहम काम है कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन भी, हमारी असम्बली भी, हमारी टेस्टिंग भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हुई है और अब हम स्पेस दौड़ के अंदर किसी से भी पीछे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अमजद अली, आई एम DG स्पेस एप्लीकेशन एंड रिसर्च। जो आज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट है और ये इंडिजिनसली डेवलप सैटेलाइट है। और ये जो आज से मई में जो हमारे लॉन्च किया था वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो स्पेसिफिकली इंटरनेट और जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट और प्लस जो टेली कम्युनिकेशन वगैरह की काम आता है। ये जो सैटेलाइट है ये स्पेसिफिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन की मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है इसके ऊपर, और इसकी बेसिस के ऊपर जो मुख्तलिफ जो अर्थ की जो रिसोर्सेज होती हैं ना उसकी हम प्लानिंग, स्पेशल प्लानिंग भी कर सकते हैं और प्लस उसकी एस्टिमेशन भी करते हैं। और उन एरियाज़ में जैसे एग्रीकल्चर शामिल है, इसके अलावा अर्बन प्लानिंग है, वाटर रिसोर्सेज हो गया, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, कोस्टल मैनेजमेंट्स हो गए। इसके अलावा डिज़ास्टर की मुख्तलिफ फेजेज़ के अंदर ये जो है ना हमारे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो मैपिंग और मॉनिटरिंग के हवाले से जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसकी काम आती है।